Dear all, in the Varsanupika Granth by Acharya Kundev and Sarvodaya Tika on the same Granth by Acharya Shri Virag Sagaji Maharaj, we were discussing on the 12 Anuprekshas, 12 thinkings that are called the mother of Vairagya. A way to salvation is Vairagya. Unless and until we get the Vairagya from and only after getting this Vairagya we can achieve the salvation. And the way to this Vairagya is these 12 Anuprekshas. Anuprekshas, Acharya already defined what is Anupreksha, that is near to Preksha. That is Anupreksha. Preksha means meditation. And the thinkings that are near to the meditation are called Anupreksha. So there are 12 Anuprekshas Acharya has discussed in which they have given the name and the sequence of the same by Gatha number 2. And in this regard, Acharya Shri Virag Sagaji Maharaj had given in their Sarvodaya Tika, that is the detailed version, that what are the nature of these Anuprekshas. One by one, Acharya Shri in short are discussing, and by the next Gatha, Acharya Shri will discuss these Anuprekshas in detail. But here, Acharya Shri is giving the small nature of these Anuprekshas one by one. So, in this regard, first of all, Acharya Shri discussed regarding the first Anupreksha, that is Adhruv Anupreksha. Adhruv Anupreksha means nothing is everlasting. Nothing is everlasting. In the this material world, no thing is there that is everlasting, that can last forever, because everything that has a start, that is containing an end, whether it is a lively thing or it is a unlively thing. Everything and every person is having an end. Everything and every person is having an end. No one is everlasting. One day we will dissolve. Whether it is a person or it is a thing, they all will get dissolved. This is Adhruv Anupreksha. So that's why only our soul that is everlasting, that soul is only achievable. So that soul, we should try to get involved in that soul only. That soul has a everlasting sequence and that soul is achievable. So this is the first one, that is Adhruv Anupreksha. In this, Acharya Shri had given quoted a lot of granthas references, and by that things Acharya Shri told that if you want to get the salvation, if you want to get the real happiness, then you should think about this first thinking, that is Adhruvanupeksha, that all material things are destroyable. One day they will get destroyed and then you will get unhappy. That's why do not get involved in those things. Rather, you get involved in your own soul that is everlasting. And if you get involved in your own soul, you will not need to get involved in the other things. So this already discussed. And the second one Achashi discussed, that is Asharan. Asharan. So in this Anupreksha, Acharya told that there is no shelter in the world. No shelter in the world. Whether it is your father, whether it is your mother, whether it is a doctor, whether it is a Vaidya, whether he is having some mantras, tantras, or everything. These all are useless when death comes in front of you.
Now nobody is able to give you any shelter from a death, because once your life is ended, nobody can save you. Whether he's a doctor, whether you are taking any medicine, whether you are taking the shelter of your guru, whosoever it may be, whether it is mantra, tantra, medicine, everything that become useless at that time. Whatsoever your lifespan is there, you can only live at that time. After that, you cannot survive, nobody can save you from the death. So this is Ashran Anupreksha. Thinking this fact again and again, thinking this fact again and again, get you disinvolved from your worldly life and get involved in your own life, that is your immaterial life can be disachieved, and your inner life that gets started. So that's why we should not take the shelter, we should not try to take the shelter of these material things and the peoples, rather we should take the shelter of panch parameshti. Panch parameshti, that is Arihant Siddhacharya Upadhyay Sadhu, and basically we should take the shelter of our own soul. So these things we had already discussed, and in this regard Acharya Kundkund Dev had said in the Katha number 203 in Samay Sargant that we will take today. बंधुओं, आचार्य कुंद देव का महान ग्रंथ वारसानुपेक्षा और उस पर सर्वोदय नाम की यह टीका, जो स्वयं परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी के कर कमलों से लिखी गई है, इसमें एक बहुत सुंदर चिंतन आचार्य श्री ने लिखा है 12 भावनाओं के ऊपर। ये 12 भावनाएं क्या हैं, इनका स्वरूप क्या है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये वैराग्य की जननी है। हमारे अंदर वैराग्य की उत्पत्ति यदि कोई होती है तो इन 12 भावनाओं के माध्यम से होती है। तो ये 12 भावनाओं के विषय में गाथा नंबर 2 में जहाँ आचार्य श्री इनके नाम बताए थे, तो कल हमने देखा था कि आचार्य विराग सागर जी महाराज ने अपनी सर्वोदय टीका के माध्यम से इनका अल्प रूप में परिचय भी दिया था, और जिसमें पहली अनुप्रेक्षा कौन सी थी? अध्रुव अनुप्रेक्षा। अध्रुव अनुप्रेक्षा जिसमें आचार्य श्री ने बताया था कि जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब क्या हैं? अध्रुव हैं, अनित्य हैं, जिसे हम कहते हैं ना अनित्य भावना। तो सभी वस्तुएं क्या हैं? अनित्य हैं, एक दिन समाप्त होने वाली है। कोई भी चीज सदा के लिए नहीं रह सकती, चाहे वो कोई व्यक्ति हो अथवा कोई वस्तु हो। इतने बड़े पदों के धारी चक्रवर्ती नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, वे भी शाश्वत नहीं रह सके। आयु के समाप्त होते ही उन्हें भी इस शरीर को छोड़ना पड़ा, वे भी शाश्वत नहीं रह सके। तो हम और आप तो निश्चित रूप से एक दिन ये आयु समाप्त होने वाली है। तो और संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनके लिए हम हर समय राग द्वेष में लगे रहते हैं, वस्तुएं हमें अच्छी लगती हैं तो हम उनसे राग करते हैं और खराब लगती हैं तो उनसे द्वेष करते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? एकमात्र अपने कर्मों का बंध कर रहे हैं, अपनी निज आत्मा को कर्मों से बांध रहे हैं। जबकि जिन वस्तुओं के लिए हम राग द्वेष कर रहे हैं वे क्या हैं? अध्रुव हैं, स्थायी रहने वाले नहीं है। यदि हम राग द्वेष के द्वारा कोई वस्तु प्राप्त भी कर लेते हैं तो क्या होगा? वो स्थायी नहीं रहेगी, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी, और हम अपने आप को उस वस्तु के कारण कर्मों से बंद कर लें। अगर कुछ स्थायी रहने वाली चीज है तो वो क्या है? मेरी चिदानंद चैतन्यशाली शुद्ध आत्मा है। वही आत्मा स्थायी है, सदा काल से रही है, सदा तक रहेगी। उसी आत्मा के विषय में हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, उसी आत्मा को प्राप्त करने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, और यही वास्तविकता में सच्चा पुरुषार्थ है। अपने आप को अशाश्वत वस्तुओं से हटाना और शाश्वत अपनी आत्मा को प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ है वही सच्चा पुरुषार्थ है। ऐसा कल हमने देखा था कि आचार्य श्री ने
अध्रुव अनुप्रेक्षा के माध्यम से बताया था। और आचार्य ने बताया था कि क्योंकि हम राग द्वेष के द्वारा उन अशाश्वत वस्तुओं में ही सुख का आभास कर रहे हैं। कैसे? क्षणिक सुख का। तो क्षणिक और सुखाभास, ये दो शब्द आचार्य ने कहे थे। पहली बात तो सुख कैसा है? क्षणिक है। और दूसरी बात वो सुख ही नहीं है, सुख का आभास है। क्योंकि सुख वास्तविकता में क्षणिक सुख कभी सच्चा सुख नहीं हो सकता। सच्चा सुख तो वही शाश्वत सुख है। तो इसी कारण से आज तक हम लोग जो हैं चेतन और अचेतन पदार्थों में ही शाश्वत सुख मान रहे हैं। इस कारण से हम क्या हो रहे हैं? उनसे विरक्त नहीं हो पा रहे, काम भोगों से हम विरक्त नहीं हो पा रहे, और हमें निश्रेयस, परम निश्रेयस मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। वो उसी को हो पाती है जो इन सब से विरक्त होकर क्या करता है? निज आत्म द्रव्य का, शुद्धात्म तत्व का अवलंबन लेता है, उसी की ओर दृष्टि रखता है, उसी के लिए पुरुषार्थ करता है, तो एक दिन उस आत्म पद को प्राप्त करके शाश्वत मोक्ष सुख की भी उसको प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आचार्य जी ने अनित्य भावना या अध्रुव भावना के माध्यम से ये सब बातें कही थी। दूसरी भावना कल आचार्य जी जो बता रहे थे वो थी अशरण भावना। तो अशरण भावना का अर्थ है कि शरण का ना होना। संसार में जितनी भी चीजें हैं ये कैसी हैं? अशरण हैं, कोई भी शरणभूत नहीं है। हम मटेरियल पदार्थों में शरण मानने लगते हैं, कहीं डॉक्टर के अंदर, कहीं वैद्य के अंदर, कहीं मनी मंत्र औषधि के अंदर शरण मान लेते हैं कि शायद ये हमें बचा लेगी। लेकिन दो उदाहरणों के द्वारा आचार्य ने स्पष्ट किया था। पहला तो ये कि जैसे एक हिरन जो कि घनघोर बियावान जंगल में एक व्याघ्र के द्वारा पकड़ा जा चुका है, अब उसकी कोई भी शरण नहीं है, कोई भी उसको बचाने में समर्थ नहीं है। और दूसरा उदाहरण आचार्य ने क्या कहा था? एक दूसरा उदाहरण आचार्य ने इस विषय में दिया था कि एक महासमुद्र में जलयान में कोई व्यक्ति जा रहा है और उसका जलयान किसी कारण से नष्ट हो गया। अब उसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। एक महासमुद्र है और बीचों बीच उसका जलयान नष्ट हो गया, अब उसको बचाने वाला कोई नहीं है, वो व्यक्ति तैरना भी नहीं जानता और इतने बड़े समुद्र से पार नहीं हो सकता। निश्चित रूप से अब उसे बचाने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो ये दो उदाहरणों के बताया था कि जैसे उसमें कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार से इस संसार महाअटवी, इस संसार रूपी भयानक जंगल में अथवा संसार महासमुद्र में जो फंसे हुए जीव हैं, आयु के अंत आने पर कोई भी उन्हें बचाने में समर्थ नहीं है। काल रूप सिंह ने जिसको पकड़ लिया, काल रूप सिंह के पकड़ में जो आ गया, अब चाहे मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, चाहे औषधि हो, चाहे मणि हो, चाहे वैद्य हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे माता पिता हो, चाहे सहोदर हो, ये सब क्या है? कोई भी आपको बचाने में समर्थ नहीं है। एकमात्र आचार्य ने कहा था कि यदि कोई शरण है तो वो क्या है? पंच परमेष्टि। पंच परमेष्टि लोकोत्तर शरण है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से पांच परमेष्टि अहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु ये क्या है? ये शरणभूत होते हैं। और परमार्थ दृष्टि से तो शुद्ध निज आत्मा ही, शुद्ध आत्मा, निजात्मा, परमात्मा ही शरण है, अन्य कोई भी शरण नहीं है। तो ये सब बातें कल हमने चर्चा की थी। आज आचार्य श्री इसी बात में आगे कहते हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव समय सार गाथा 203 में भी यही बात बतला रहे हैं। अतएव आचार्य कुंद कुंद देवा समय सार ग्रंथे गाथा 203 उद्बोधिवंता। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार गाथा 203 में भी ये बात उद्बोधित की है। आदमिदव्व भावे अपदे मोतुन गिन्नतः निदम थिर मेघमिमं भावम उवलभंतम सहावेन। आदमिदव्व भावे, आदमी, आदमी यानी आत्मा में सप्तमी का प्रयोग है, एक वचन का। आत्मा कैसी है? एक है। मेरी आत्मा कितनी है? एक ही है ना, दो तो नहीं है, बहुत सारी तो नहीं है। तो इसलिए एक वचन का प्रयोग किया है, आदमी, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। तो आदमी यानी आत्मा में
दव भावे द्रव्य भावों को अपदे अपदभूत मोक्तून छोड़कर गिन्नतः नियतम निश्चित स्थिर इस भाव को स्थिर मेघ मिमम भावम एक स्थिर यानी स्थिर स्थिरम एक मिमम एक इमम भावम इस भाव में उवलभंतम सहावेन जो स्वभावता अनुभव में आता है ऐसे हे भव्य जीव उसी को उसी रूप में ग्रहण करो। गिन्नत है नियतम उसको ग्रहण करो, नियतम निश्चित रूप से नियत रूप में उसको ग्रहण करो, जैसा है वैसा ही ग्रहण करो। तो आत्मा में अपद भूत द्रव्य भावों को छोड़कर निश्चित स्थिर इस एक भाव को जो स्वभावता अनुभव में आता है, हे भव्य जैसा है उसी रूप में ग्रहण करो। क्या कहा आचार्य ने? आदम्य तव भावे अपदे मोतुन स्थिर मेघ मिदम। आत्मा में अपदे दव भावे जो भी अपद भूत द्रव्य भाव हैं उनको मोतून छोड़ दो उन सबको। स्थिर मेघ मिदम स्थिर हो एक मिमम इसी भाव में उलंतम सहावे तो जो जिस रूप में है गिन तह निदम उसी भाव में उसको उसी रूप में ग्रहण करो। तो यहाँ पर आचार्य ने इसकी व्याख्या की है कि जो आत्म रूप पदार्थ है अपद जो बाहर के भाव हैं द्रव्य भाव हैं उनको छोड़कर निश्चित और स्थिर एक जो आत्मा का भाव है जैसा अनुभव में आता है। और कल हमने देखा था कि आत्मा का अनुभव कैसे होता है? दात्मने आत्मनि स्थितम निज आत्मा में स्थिर होकर आत्मा के द्वारा ही आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ना तो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है और ना किसी बाह्य पदार्थ के द्वारा ये आत्मा ग्राह्य है। एकमात्र आत्मा का ग्रहण कैसे होता है? आत्मा के द्वारा ही होता है। अप्पा अपमेरो परम ध्यान की बात जहां पर आचार्य नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कही तो वहां क्या कहा? अप्पा अपमेरो इनेव परम ध्यानम। परम ध्यान क्या है? आत्मा को आत्मा में लगाओ। बोले वचन की चेष्टा छोड़ दो, बोलने की बात छोड़ दो, सोचना भी छोड़ दो, कार्य करना भी छोड़ दो, मन की सभी क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, वचन की सभी क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, काया की सभी क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ। एकमात्र निज आत्मा को आत्मा में स्थिर करो। ऐसा भी नहीं है कि सारी क्रियाएं छोड़ दी बस अब क्या करो आराम से सो जाओ। बोले सोते हुए शरीर क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। स्थिर हो जाता है ना शरीर, तो शरीर की क्रियाएं रुक गई, किसी प्रकार की बोलने की क्रियाएं भी नहीं रहती। सोता हुआ व्यक्ति कभी बोलता भी नहीं है तो बोलने की काम भी रुक गए, शरीर की क्रियाएं भी रुक गई, बोलने की क्रियाएं भी शुरू की और एक दृष्टिकोण से मन भी स्थिर हो जाता है ना। मन में भी कोई भाव संकल्प विकल्प तो आते भी होंगे तो हमें ध्यान नहीं रहते। जब उठते हैं तो हमें बहुत सारा चीज़ें भूल भी जाती है तो हमें लगता है कि मन भी स्थिर हो गया। तो इसका मतलब है आचार्य ने कहा था द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 56 में आचार्य श्री सिद्धांति देव नेमिचंद जी महाराज ये बात करें। माँ चिट्ठ है माँ जंप है माँ चिंत है किन्वी जेन होई थिरो अप्पा अप्पमयरो इनेव परम हवे ध्यानम। क्या कहा उन्होंने? माँ चिट्ठ है कोई चेष्टा मत करो, शरीर को स्थिर कर दो, किसी प्रकार का हलन डुलन बिल्कुल सीधे एक रोक लो। माँ जंप है कोई भी वचन मत बोलो, माँ जंप है। माँ चिंत्य कोई भी चिंता मत करो, चिंतन भी मत करो, कुछ भी मत करो, मन को भी स्थिर कर दो। किम्वी चैन होई थिरो जिससे आप स्थिर हो जाओ, बस हो गया परम ध्यान। बोले नहीं, आगे बात कह रहे हैं अप्पा अप्पमयी रहो, ये महत्वपूर्ण बात कही। आत्मा को आत्मा में रमाओ। अगर ये नहीं है तो परम ध्यान नहीं हो सकता। मात्र योगा वाले होते हैं, प्राणायाम करवाते हैं, क्या करवाते हैं? बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, शरीर की चेष्टाएं बंद कर दो, आंखें बंद कर लो, देखना बंद कर दो,
बाहर से कोई आवाज़ आ रही है उस पर भी ध्यान मत दो, अपनी श्वासों को भी देख लो, उसके बाद उसको भी छोड़ दो, अपनी श्वासों को भी रोक लो। प्राणायाम में सब क्रियाएं बताते हैं, बस इतना ही, इससे आगे नहीं बताते हो। प्राणायाम में इतना ही बताते हैं कि अपनी श्वासों को रोक लो, शरीर की क्रियाओं को रोक लो, लेकिन इसके बाद क्या करोगे? आत्मा का आत्मा से ध्यान करो, इन एव परम ध्यानम। ये जरूरी है, अगर ये नहीं है तो वो परम ध्यान नहीं है। वो मात्र आपके शरीर को स्वस्थ कर सकता है, लेकिन आत्मा को स्वस्थ नहीं कर सकता। और हो सकता है आप इसमें डूबो तो आपको नींद आने लगे, तो आपके सारे जो एफर्ट है वो क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए कहा कि अप्पा अप्पमयी रहो, ये पद दिया उन्होंने, आत्मा को आत्मा में लगाओ। तो वही यहाँ पे कहा कि आत्मा में अपदभूत द्रव्य भाव को छोड़कर इस एक भाव में जो स्थिर अनुभव में आता है वैसा ही उसे उसी रूप में ग्रहण करो। और कैसे ग्रहण करो? आत्मा से ही ग्रहण करो। आचार्य अमृत चंद्रेण च प्रोक्तम। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी ने भी इस विषय में आत्मख्याति गाथा नंबर 206 में ये बात कही है। एवं तत् नित्यम आत्मरतस्य आत्मसंतुष्टस्य आत्मतृप्तस्य च वाचाम अगोचरम सौख्यम भविष्यति। तो आचार्य श्री अमृतचंद महाराज आत्मख्याति टीका गाथा नंबर 206 में कह रहे हैं कि एवं तत्र तत् नित्यमेव, इस प्रकार वह तत् अनित्यमेव, वो क्या है? तत् नित्यमेव, वैसी नित्य ही आत्मरतस्य, आत्मा में निरत, आत्म संतुष्टस्य, आत्मा में ही संतुष्ट, आत्म तृप्तस्य, आत्मा में ही तृप्त हो जाओगे, च वाचाम गोचरम सौख्यम भविष्यति, तो तुम्हें अनिर्वचनीय, वाचाम गोचरम, जो वाणी से नहीं कहा जा सकता, जो क्या है? वाणी से अगोचर है, ऐसा सौख्यम भविष्यति, ऐसा सुख आपको प्राप्त होगा। कब होगा? जो आत्मा में निरत रहेगा, आत्मा में ही संतुष्ट हो जाएगा, आत्मा में ही तृप्त हो जाएगा, तो अनिर्वचनीय। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? बालचंद जी, गर्मी लग रही हो और पंखा ना चले, क्या स्थिति हो जाती है? आकुल व्याकुल हो जाते हैं ना। और पंखा चल भी जाए और फिर भी मच्छर परेशान कर रहे हो, फिर पंखा भी बेकार हो गया। कहीं ये लगेगा कि ये पंखा तो बढ़िया नहीं चल रहा, कूलर होना चाहिए। तो आपकी तृप्ति खत्म हुई क्या? सुख की प्राप्ति हुई या दुख की? उस पंखे से भी विरक्ति होगी, वही कूलर लेके आओ। अब कूलर चल गया, पसीना आ रहा है और कूलर में आपने पानी छोड़ दिया, क्या हो रहा? चिपचिप होने लगा। अरे इसका भी कोई फायदा नहीं, ये भी परेशान कर रहा है। एसी मंगाओ आप, तो ठंडी में तो एसी काम करता है। अच्छा, एसी ले आए आप लोग, एसी लगा दिया। अब एसी की आपकी कूलिंग का आपने जो सेट किया, तो कभी ठंडी ज़्यादा लगने लगी और कभी लग रहा कि तो ठीक से लगा ही नहीं है, और बढ़ाओ इसका थोड़ा सा, तो वहाँ भी संतुष्टि नहीं हो रही। यानी कहने का मतलब है कि जब तक आपको गर्मी सता रही है तब तक ये सारे साधन क्या हैं? निरर्थक हो जा रहे हैं। एसी भी आपने सेट कर लिया, कभी उसको कम किया, कभी ज़्यादा किया, कभी ठंडी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है। आप स्वयं ही निश्चय नहीं कर पा रहे कि इसमें कौन से टेम्परेचर पे सेट करूं। क्यों? क्योंकि आपको संतुष्टि नहीं है। अच्छे से अच्छा आप लोग गद्दा ले आए, फिर भी ये तो गड़ रहा है, नहीं डल्लप का होना चाहिए। अच्छा डल्लप का ले आओ, और बीच में अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अभी भी संतुष्टि नहीं हो रही, नींद फिर भी नहीं आ रही। और एक वो मजदूर है, सारा दिन उसने मजदूरी करी और वही जो उसने रोटी कूटी थी उसी के ऊपर लेटा और बढ़िया नींद होगी, कब उसको पता लग गया सवेर होगी मालूम ही नहीं। तो ये क्या है? वास्तविकता में वो जो सुख हमने प्राप्त करने का प्रयास किया है उसमें हम आसक्त हैं, इस कारण वो हमें सुख सुख महसूस नहीं हो रहा, क्षणिक है वो। आपने एक बार को गर्मी से बचने का उपाय भी कर लिया, थोड़ी देर बाद लाइट चली गई, अनित्य है, अशरण है, अनित्य है वो, तो थोड़ी देर बाद खत्म होना ही होना है।
आपने जनरेटर का सिस्टम बनाया, उसमें तेल ख़त्म हो गया। कहीं आपने इन्वर्टर लगाया तो वो भी उसकी चार्जिंग पूरी होगी। जितने जितने आप उपाय करते जा रहे हो उतना उतना क्या है, परेशान होते जा रहे हो। ये भी जोड़ लो, ये भी जोड़ लो, ये भी जोड़ लो, और फिर भी आप परेशान हो। और एक मुनिराज होते हैं, जहाँ बैठ गए वहाँ पर सुखी। क्यों? निज आत्मा में संतुष्टि प्राप्त की है। तो यहाँ का कहा आत्मरतस्य। अब आप अपने ऊपर ही घटक कर लो। मान लीजिए यदि आप सामायिक में बैठ गए और अच्छा मन लग गया, चिंतन चल गया, और उस मौके पे कहीं लाइट चली जाए और आपका अच्छा मन लगा है, तो क्या होगा? आपको ज़्यादा एहसास नहीं होगा कि गर्मी है या सर्दी है, कुछ है। अगर अच्छा मन लगा है तो किसका प्रभाव है? क्योंकि जो ये माइंड है, हमने एक दिन बताया था, ये जो माइंड है ये एक समय में एक जगह लग सकता है, दो जगह नहीं लग सकता। या तो आत्मा में स्थिर होगा या बाह्य पदार्थ में स्थिर होगा, या तो आध्यात्म में जा सकता है या बाह्य पदार्थों में जा सकता है। तो जो व्यक्ति अपने इस माइंड को, अपनी इस आत्मा को, अपने इस दिमाग को, अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, बाह्य विषयों से हटाते हैं, और वो हटाएगा कैसे? हटाएंगे कैसे? डंडा लेके खड़े हो जाओ, हट भैया हट, यहाँ से हट जाएगा क्या? बोले अगर उसको वहां से हटाना है तो उसके लिए उसको अच्छे काम में लगा दो, बस वो अपने आप दूसरे काम से हट जाएगा। यही एक तरीका है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा जब भी अध्ययन का अवसर आ जाए, सारे काम छोड़ दो, अध्ययन में लग जाओ। स्वाध्याय का अवसर आ जाए, क्यों? मन स्थिर। स्वाध्याय के मनन से मन हाथ आता, स्वाध्याय के मनन से मन हाथ आता, अज्ञान तम को हरता, अज्ञान ज्ञान को जगाता, ज्ञान दीप जगाता। तो स्वाध्याय एक ऐसा माध्यम है जिससे दो फायदे हो रहे हैं। एक तो अज्ञान तिमिर नष्ट हो रहा है, ज्ञान दीपक जल रहा है, और दूसरा ये मन, मन जो है अब दूसरे जगह नहीं जा सकता। आप लोग यहाँ पे बैठे हो, डेली आते हो क्लास में, इस समय आपको कहीं गर्मी लगती है क्या? पंखे भी नहीं चल रहे फिर भी गर्मी नहीं लग रही, क्यों? मन कहाँ लगा हुआ है? स्वाध्याय में लगा हुआ है। तो जब स्वाध्याय में लग गया तो वही क्या कहा? आत्मरतस्य। जो आत्मा में रत है, अब वो दूसरी जगह रत नहीं हो सकता, एक ही जगह हो सकता है। आत्म संतुष्ट से, जिसको आत्मा में संतुष्टि आ गई, परमानंद का जिसको आनंद आने लग गया, अब बाह्य विषयों से उसे कोई मतलब नहीं। मुनिराज होते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, निज आत्म अनुभव को लेते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, उसमें संतुष्ट रहते हैं कि हाँ आत्म अमृत की मुझे प्राप्ति हो रही है। बाह्य विषय मिले ना मिले उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे उनको कोई प्रयोजन नहीं रहता। आत्म तृप्त से, उसी में तृप्त हैं, उसी में संतुष्ट हैं, उसी में तृप्त हैं। अब उनको सुख प्राप्त हो रहा है। कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है? वाचाम गोचर, जिसे वाणी से नहीं कहा जा सकता। उसमें कोई मापदंड नहीं है कि इतने परसेंट है, इतने परसेंट इतने। वाचाम गोचर सौख्यम भविष्यति। कैसा सुख होगा? वाचाम गोचर। तो ये जो अकथनीय सुख है, बाकी सुख तो कैसे हैं? क्षणिक हैं, थोड़ी देर होंगे और उसके बाद समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो आत्म द्रव्य में संतुष्ट हो जाता है तो उसको वाचाम गोचर, जिसके लिए सामान्य सुख नहीं कहा, जिसके लिए वाणी से कहा ही नहीं जा सकता, तो ऐसा एक सुख जो है उनके लिए प्राप्त होता है जो सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि वाचाम गोचर सुखम किसको होगा? जो आत्मा में रत रहेगा, दूसरे किसी को नहीं हो सकता। आगे कहते हैं अतः शुद्धात्म मात्र में, अतः शुद्धात्म मात्र में शरणम नेतरत। इसलिए शुद्ध आत्मा मात्र ही शरण है, ना इतर, ना इतर, और कोई शरण नहीं है। इति पुनः पुनः चिंतन मशरण नुप्रेक्षा भवति। तो ये बात फिर कहा पुनः पुनः, भावना यानी बार बार, एक बार से काम नहीं चलेगा, बार बार सुनो, बार बार ध्याओ, बार बार चिंतन करो। तो बार बार चिंतन अनुप्रेक्षा भक्ति, कौन सी? अशरण अनुप्रेक्षा।
कि जितने भी संसार में वस्तुएं हैं ये सब क्या है, अशरणभूत, कोई भी शरण नहीं है, एकमात्र निज आत्मा ही शरण है। इस बात का बार बार चिंतन करना। एतस्या फलम जीवस्य मृत्यु भय विमुक्ति। हर व्यक्ति डरा भरा रहता है, शेर आ गया खा जाएगा, बिजली का करंट लग गया जीवन समाप्त हो जाएगा, एक्सीडेंट हो गया क्या होगा, बहुत सारी चीजों से। अपने ही सगे लोगों पर भरोसा नहीं रहता, कौन कब कौन सा धोखा दे जाए, कब बेटा ही जो है पिता को समाप्त कर दे जायदाद के लालच में, कब पत्नी धोखा दे दे। मृत्यु का भय, सम्यक दृष्टि जो है वो 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है, 7 प्रकार के भयों से। ना तो उसको मृत्यु का भय होता है, इहलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, अगुप्ती भय आदि आदि, सब प्रकार के भयों से मुक्त। क्यों? निज आत्म तत्व में रुचि है उसकी, और उसे पता है आत्मा कैसी है, शाश्वत है, कभी इसकी समाप्ति नहीं हो सकती। कभी निज आत्मा का ना तो मृत्यु हो सकती है, ना ही से कोई वेदना हो सकती है, ना ही किसी के साथ जलाई जा सकती है, ना ही किसी के द्वारा छेदी भेदी जा सकती है। इतना उसको दृढ़ विश्वास है, और मैं क्या हूँ, एक आत्मा हूँ, इसलिए मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो जब ये भावना आ जाती है निज आत्मचिंतन में डूब के, तो क्या होता है, मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। ये तस्या फलम, इसका क्या फल है, जीवस्य मृत्यु भय विमुक्ति, जीव की मृत्यु के भय से विमुक्ति हो जाती है, मृत्यु का भव से छूट जाता है। अथ च अरहंत प्रणीत मार्गे प्रवृत्ति प्रवृद्यते, इस प्रकार अरहंत प्रणीत यानी मोक्ष मार्ग में उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। एयत्तम, एकत्वम, अगली भावना है एकत्व भावना। इस प्रकार से आचार्य जी ने क्या कहा, कौन सी भावना के विषय में बताया, अशरण भावना के लिए। यानी ये अशरण भावना में आचार्य जी ने संक्षेप में बताया कि अशरण भावना का अर्थ है कि संसार के पदार्थों से क्या करना, मन को हटाना, संसार के पदार्थों से अपने मन को हटाकर किसमें, निज आत्मा में लगाना। ये क्या है, एकमात्र निज आत्मा ही शरणभूत है, और बाकी सारी चीजें शरणभूत नहीं है। ये अशरण भावना का आशी ने कहा। अब अगली भावना की बात कर रहे हैं आशी, एयत्तम यानी एकत्व भावना। आत्मन एकत्वस्य पुनः पुनः चिंतन मेकत्वानुपेक्षा तृतीया भक्ति। तो आत्मा के एकत्व भाव का पुनः पुनः चिंतन, बार बार चिंतन करना, एकत्व नाम की तीसरी अनुप्रेक्षा होती है। एकत्व नाम की तीसरी अनुप्रेक्षा क्या है, आत्मा के एकत्व भाव का बार बार चिंतन करना। आत्मा कैसी है, एक है, ज्यादा नहीं है। शुद्ध निश्चय नयन अहम पर द्रव्यात भिन्न, शुद्ध निश्चय नय से मैं क्या हूँ, पर द्रव्यों से भिन्न हूँ, सर्वथा भिन्न हूँ। न च हम चेतना चेतन नादि पर द्रव्य रूपः, न च मम पर द्रव्याणि, न च पर द्रव्याणा न महम। तो मैं क्या हूँ, पर द्रव्यों से सर्वथा भिन्न हूँ। ना च हम चेतना चेतन आदि पर द्रव्य रूप, ना तो मैं चेतन अचेतन आदि पर द्रव्य रूप हूँ। ना च मम पर द्रव्यानि, मेरे पर द्रव्य भी नहीं है। ना तो मैं चेतन अचेतन रूप पर द्रव्य हूँ, ना ही वे मेरे हैं। और ना च पर द्रव्याणाम हम, ना ही दूसरे द्रव्यों का मैं हूँ, यानी मैं स्वामी हूँ। तो 3 बातें आचार्य ने कह दी कि ना तो मैं परद्रव्य रूप हूँ, चेतन और अचेतन रूप, ना ही परद्रव्य, ना ही मेरे परद्रव्य हैं, और ना ही परद्रव्यों का मैं स्वामी हूँ। तीनों बातें कह दी। सर्वथा भिन्न हूँ। एक एव आत्मा जायते म्रियते वा, तो एकमात्र आत्मा, एक आत्मा जो है जायते जन्म लेती है, म्रियते वा और मरती है। आप अकेला अकेला ही जो व्यक्ति जन्म लेता है और अगला ही मरे अकेला होए।
आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। तो अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। एक एव आत्मा जायते, जन्म लेती है, और म्रियते वा, तो आत्मा जो है अकेले ही क्या करती है, जन्म लेती है और मृत्यते वा, मरण को प्राप्त होती है। एक एव च विविध गतिषु कर्मानुरूपम परिभ्रमति, अकेली ही विविध गतियों में, मनुष्य गति, तिरंच गति, नरक गति, स्वर्ग गति, कर्मानुरूपम परिभ्रमति, कैसे परिभ्रमण करती है, कर्मों के अनुसार, जैसे हम कर्म करेंगे वैसी हमारे लिए गति की प्राप्ति होगी। कोई दूसरा इसको चलाने वाला नहीं है, अपने कर्मों के निर्माता स्वयं हैं हम। दूसरों को दोष नहीं दे सकते कि उसने मेरे को ऐसा कर दिया, उसने मेरे को वैसा कर दिया। जितने भी काम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उसमें कौन कारण है, मैं स्वयं हूं, और कोई इसमें कारण नहीं है। एकाकी एव आत्मा कर्मणि बद्धति, तो अपने कर्मों को बांधने वाली भी क्या है, एकाकी एव आत्मा, ये कर्मों से बंधती है, यही एक आत्मा बंधती है। एकाक्येंच स्वकर्माणि भुक्ते, और इन फलों को भी, इसके फलों को भी स्वयं ही भोगती है। न च तस्य कश्चिद अन्य सहायका, इसमें और कोई सहायक नहीं है। इत्येव प्रकारेण जन्म जरा मरण महादुखानुभवनम प्रति सहायनापेक्षिता एव एकत्वम तदनुचिंतनम एकत्वानुप्रेक्षा। तो इस प्रकार से जो जन्म मरण, जन्म जरा यानी बुढ़ापा और मरण, इन महादुखों का अनुभव करने में कोई भी सहायक नहीं है, उसकी सहायता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सहायन अपेक्षा, इसमें कोई भी सहायता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एवं एकत्वम तदुचिंतनम एकात्वानुपेक्षा, तो इस बात का चिंतन क्या है, एकत्वानुपेक्षा है। बोले ये जो आत्मा है स्वयं ही जन्म कर लेती है, स्वयं ही मरती है, स्वयं ही पाप करती है, स्वयं उन पाप फलों को भोगती है, अन्य को इसमें कोई करता धरता नहीं है। तो वार्षानुपेक्षा की इसी गाथा नंबर 15 में भी आचार्य श्री जब इसको डिटेल में कहेंगे तो वहां पर भी आचार्य श्री कहेंगे, इक्को करेदि पावम विषय निमित्तेन तिवलोहेन नियतिर्यसु जीवो तस्फलम भुंजदे इक्को। तो यही ग्रंथ में आचार्य श्री 15 नंबर गाथा में भी ये बात बताएंगे कि इक्को करेदि पावम, ये एक आत्मा ही पापों को करती है, कोई दूसरा नहीं करता। हमने जो पाप किया है किस कारण से किया है, विषय निमित्तेन तिवलोहेन, विषयों में आसक्ति के कारण, पंच इंद्रिय के विषयों में हम आसक्त होते हैं, इस कारण पाप का बंध होता है। और तिवलोहेन, तीव्र लोभ के कारण, लोभ पाप का बाप बखाना। सबसे बड़ा क्या होता है, चारों कषायों में लोभ कषाय सबसे बड़ी, 9वें गुण स्थान में बाकी सभी कषायों का अंत हो जाता है। क्या रह जाता है, एकमात्र सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म लोभ जो कि 10वें गुण स्थान में जाके खत्म होता है, बाकी सारी कषाय 9वें गुण स्थान में, लेकिन लोभ कषाय एक ऐसी है जो 10वें गुण स्थान तक जाती है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है पाप का, ये लोभ है, ये मिल जाए वो भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए वैसा भी हो जाए, ऐसा हो, ये क्या है, लोभ। अगर किसी के पास 100 रुपए हैं तो 1000 कैसे हो जाए, 1000 हैं तो 10,000 कैसे हो जाए, 1 लाख कैसे हो जाए, करोड़पति कैसे बन जाऊं, नगर सेठ कैसे बन जाऊं, मैं तो इतना बड़ा उद्योगपति बन जाऊं, पूरे विश्व में मेरा नाम हो जाए। ये सब क्या है, लोभ। कल का भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं, और जमाने भर की बात करते हैं, ये भी जोड़ लूँ ये भी जोड़ लूँ, 7 पीढ़ी तक का आपने सामान जुटा लिया, अभी भी आप लगे हुए हैं। तो ये क्या है, ये लोभ है। और एक मुनिजन होते हैं, कोई भरोसा नहीं कल को आहार के लिए निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और निकले भी तो कोई भरोसा नहीं, उनके लिए कोई व्यवस्था लेके नहीं चलते कि फिक्स करके तो चलो कल बालचंद जी आपका चौका लगना चाहिए, क्या मालूम कोई लगाए नहीं लगाए, पहले से फिक्स कर लो। करते हैं क्या, बुला बुला के, महेंद्र जी कल का चौका आपका रहना चाहिए, कोई भरोसा थोड़ी है, कोई चिंता नहीं करता, कोई चिंता नहीं रहती उनको, और उसका परिणाम क्या रहता है,
लोग लगे हुए हैं, हे स्वामी अत्रो अत्रो अत्रो, उसमें भी विधि लेके निकलते हैं, विधि मिलेगी तो पढ़ गएंगे। और यदि किस्मत में होगा तो आहार होगा, उन्हें तो छोड़ना पड़ेगा, हाथ में आया हुआ भी छोड़ना पड़ता है, मुख से भी निकालना पड़ता है। तो इसलिए कोई लोभ लालच कुछ नहीं, जो आया आराम से ले लिया, ऐसा हो वैसा हो कुछ नहीं, जो आया शुद्ध प्रासुक उनके नियमों के अनुसार है, आराम से ग्रहण किया और 24 घंटे फुर्सत। और एक लोभी प्राणी है, ये भी जोड़ लो, ये भी जोड़ लो, ये भी जोड़ लो, ये भी जोड़ लो। तो तीव्रलोहेन विषय निमित्तेन, पंचेंद्रिय के विषय, स्पर्शन इंद्रिय का विषय, कहीं रसना इंद्रिय का विषय, क्या कर रहा है, इक्को करेदी पाप, ये सब पाप कार्यों में इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसा गद्दा, ऐसा हमारा जो खाने पीने की भोजनों में आसक्ति, रसना इंद्रिय का विषय, घ्राण इंद्रिय का, सुगंध, इत्र, सेंट, सब क्या है, कर्ण इंद्रिय का विषय, संगीत। तो ये सब विषय निमित्तेन, पंच इंद्रिय के विषयों के निमित्त से क्रेदी पापम, पापों को करता है। जब ऐसे विषयों की आशा करता है तो पाप कार्यों में इन्वॉल्व होता है। अब विषय की पूर्ति कैसे हो, किस तरीके से, मायाचारी करके, झूठ बोल के, चोरी करके, कहीं हिंसा करके, अभ्रम का पालन करके, ये सब क्या है जो काम भोगों में आसक्त होते हैं, स्पर्शन इंद्रिय के विषय के कारण ही तो है, अभ्रम का पालन कर रहे हैं। तो विषय निमित्तेन और तीव्रलोहेन एको करेदी पावम, और इसका रिजल्ट क्या होता है, निरिये तिरियेसु जीवो, निरिय यानी नरकों में, और तिरियेसु यानी त्रियंचों में दुर्गति के कारण बनते। निरिये तिरियेसु जीवो तस्य फलम भुंजते इक्को, अब उसका कोई और नहीं है जो भोगने आएगा, जो पाप उसने किया है उसका उसको खुद ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई भोगने वाला नहीं है। तस्य फलम भुंजते इक्को, उसका फल वो अकेला ही भोगता है। पत्नी के लिए कमा रहे हो, किसके लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कमा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, दुकान पे 1 की 10 बता रहे हो सब, और कोई हिंसा आदि में इन्वॉल्व हो रहा है, लूट पाट कर रहा है, कोई डाकू है, क्या कर रहा है, लोगों को लूट रहा है, चोर है, चोरी करके ला रहा है, किस लिए, परिवार चलाने के लिए। अरे जिस पत्नी से आप इतना प्रेम कर रहे हो, जिसके लिए आप ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व हो रहे हो, पूछो जाके उससे, क्या आपके फलों में वो भागीदार होगी, क्या नहीं हो सकती। जिस बच्चों के लिए आप कर रहे हो, कल के दिन वो भी आप ही के साथ जो है आप ही को लूट के ले जाएंगे, वो आपके पापों में सहयोगी नहीं बनेंगे, उन फलों को आपको भोगना पड़ेगा, वो बच्चे नहीं उसमें भागीदार होंगे जिसमें उसका उदय आएगा, कर्म आपकी आत्मा से बन रहे हैं। तो इक्को करेदी कम्मम इक्को करेदी पावम तस्य फलम अपि भुंजते इक्को, तो वो स्वयं ही भोगता है जो उसने पाप किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य श्री ने एकत्वानुपेक्षा के विषय में बताया, और इसमें आचार्य पूज्यपाद भगवान ने इष्टोपदेश की गाथा नंबर 27 में भी यही बात कही है, जिसे हम और आगे कल देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इस प्रकार से एकत्वानुपेक्षा का यहाँ पर स्वरूप कहा जा रहा है।